आवाज नहीं आ रही है? Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is cleansing therapy, cure yourself. अपना इलाज अपने हाथ. It shall be taken by Dr. Piyush Saxena. He shall cover cure of 90% health problems at your home. No fees, no donation, no product promotion. No heart attack for 6 months. Infertile couple to conceive answers in 100 days and followed by question and answer session. Let's quickly go through the agenda. Virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Mr. Piyush Saxena, question and answer session, and last closing session. A brief introduction of Dr. Sundar Kataria. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Let's know more about Dr. Sundar Katar. Designation and organization. Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. Academic qualification, Mechanical Engineer, AMIE. Honorary Doctorate, Business Management. His experience, nuclear, RAPP, he started his career in building India's first nuclear power plant at Rawalbata, Kota, Rajasthan. Oil and gas, EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay High since its inception. DNV. He was head of industry and offshore development and DAV for 2 decades. ICS. He is founder of first Indian conformity assessment and inspection body known as the International Certification Services Private Limited, which is a provider of total quality solution under single umbrella with a wide spectrum of services. His achievements and awards, Lifetime Achievement Award of NACE Corcon. He received several national and international awards also. Now I request Dr. Kataria to please virtually inaugurate the session. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today's keynote speaker, Dr. Piyush Saxena. Designation and organization, Doctor. Academic qualification, PhD, Naturopathy. Master's degree in Reiki. Area of specialization and experience, Cure Yourself. The book is based on the cleansing therapy promoted by Dr. Saxena in the year 2008. Everything Men Know About Women.
It has been recognized for its unique conceptual understanding, published in the year 2005. Life of a Iran. It is a 540 plus pages book that covers various aspects of Inunche's secretive lives, such as their history, lifestyle, festivals, and celebrations, living with the Gyors, means of livelihood, published in the year 2011. Awards and achievements. He had won chess 1977 and bridge 1978 tournaments in Amarnatha. He also won runner-up in the open category of men's squash championship at Reliance Industry Limited in the year 2012. He has traveled to all continents. He has performed in Ramlila and also recited poems at Kavi Sammelan, an independent and progressive film director. He has also performed in many TV serials, movies, and dramas. Please welcome Dr. Piyush Saxena, sir. Over to you, sir. Good morning. Good Thank morning, you sir. Thank you very much, Kataria ji, for giving me an opportunity to be present here and talking to you people. First of all, I convey my thanks to Nilesh Gohil for introducing me to this Satgun Sangh webinar. He has been a dear friend and he always finds an opportunity to take steps for promotion of this cleansing therapy. So, सर मैं मेरे साइड से प्रेजेंट करूं सर? अच्छा, नहीं चल जाएगा अभी आगे ओके अभी ओके दिखाई दे रहा है ओके यस सर, दिखाई दे रहा है सर. ओके दिस इज ऑल अबाउट क्लीनिंग थेरेपी अपना इलाज अपने हाथ. My declaration is that whatever I'm going to tell you here, I have done experiments on myself, my father, mother, wife, son, and daughter, and I think no more affirmation is necessary. I charge no fees, I accept no donation, and I do not promote any products. I simply do it for my personal satisfaction. Are you comfortable in English or Hindi or mixed? Hello? Yes Vaibhav, sir. are you Yes sir. comfortable in English or Hindi or mixed? Both language, mixed sir, mixed both. Mixed, na? Okay. Yes. Cleansing therapy talks about removal of toxins. We get better health for ourselves, for our family, for the employer, and for the country. It is absolutely basic. जब आपकी स्कूटर या बाइक खराब होती है तो आप किसी बहुत बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं और ना ही आप ऐसा करते हैं कि उसके तमाम टेस्ट कराएं कि कार्बोरेटर कैसा है, इंजन कैसा है, ब्रेक कैसा है, फिल्टर कैसा है. आप सिर्फ स्कूटर मैकेनिक के पास जाते हैं, 50 रुपए देते हैं, कार्बोरेटर साफ करके वो आपका स्कूटर व मोटरसाइकिल फर्राटेदार कर देता है. सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मालूम होता है पहले से कि वो आपका स्कूटर ठीक कर देगा और ये आपका ये विश्वास हर बार सही उतरता है. यहां भी हम बीमारियों के बारे में यही कहना चाहते हैं कि किसी लंबे चौड़े टेस्ट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है. बस अंदर से थोड़ी सफाई कराइए. सफाई की क्यों जरूरत पड़ती है इस बारे में चर्चा करते हैं. हम लोग बीमारी की इंफॉर्मेशन के बारे में ओवरलोड हो चुके हैं. जरा सी उंगली में दर्द हुआ नहीं कि गूगल कर करके कि तमाम सिम्टम्स ये सब हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है. ये मेरी रिपोर्ट्स हैं. मैं अपना पीपीटी आपको बाद में शेयर कर दूंगा. रिपोर्ट्स की सिग्निफिकेंस मैं बता रहा हूं, रिलेवेंस. एमजीएम हॉस्पिटल न्यू बॉम्बे में वाशी में एक ही बेड पे लेट के टुडे मॉर्निंग और परसों सुबह 8:30 बजे मैंने अपना कंप्लीट टेस्ट कराया और रिपोर्ट्स में इतना फर्क था, अमेजिंग. किडनी की साइज 9.9 और 11.1, एक में फैटी लिवर, एक में नॉर्मल लिवर. कितना फर्क. तो मेरा कहना यही है, रिपोर्ट से मत आइए. क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगा. एक छोटा सा एग्जांपल, ये सेडार्स, ये अमेरिका का सबसे महंगा अस्पताल है, लॉस एंजल्स. एक दिन का खर्चा करीब 10 लाख रुपए. एक मरीज वहां पे भर्ती है. तमाम एग्जामिनेशन के बाद 6 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम एक राइटिंग में ओपिनियन देती है कि इनकी जिंदगी अब 72 घंटे की बची हुई है. आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई कहेगा अल्टरनेट
हॉस्पिटल में चले चलते हैं, सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, कोई कहेगा विल लिखाए लेते हैं, कोई कहेगा पैसे का बंदोबस्त कर लेते हैं, कोई कहेगा क्रिमेशन की तैयारी करनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि 128 अल्टरनेट थेरेपी हैं, एक बार मौका दे के देखिए और हम वहां से बाहर आए कि चीजों के इलाज भी संभव है। इस बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। अभी क्लींजिंग थेरेपी बिल्कुल बेसिक है। इस बारे में जो जो हम कहने जा रहे हैं, मैंने अलग अलग देश विदेश से पुरानी विधाएं पढ़ के, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और कुछ सोच के टोटल 28 क्लीन डेवलप किए हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ज्यादातर चीजें आपके घर के आसपास मिल जाती हैं। ये सब लो कॉस्ट है, 1000-2000 रुपए में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये मैं करीब 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और जहां जहां से जो कुछ ढूंढा मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद इंडियन कंटेक्स्ट में उसको मॉडिफाई करके आपके सामने पहुंचा। मुझे गूगल अवार्ड मिला हुआ है। $10,000 पर मंथ का एड ग्रांट था और मेरी साइट बहुत लंबे समय तक नंबर 1 पे आई थी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, TheTempleOfHealing.org, बहुत लंबे समय तक नंबर 1 पे आई। हमारे वीडियोस अक्सर नंबर 1 पे रहे और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में हमने प्रपोजल्स भेजे हुए थे, वो अंडर कंसिडरेशन रहे। और रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि हमको रिकॉग्निशन की प्रोसेस में डिटेल्ड प्रपोजल सबमिट करने के लिए बोला गया है। ये भी नीलेश नहीं कराया था, नीलेश गोयल ने, जियोटॉक रिलायंस में। और इसके बाद हम आते हैं कि हमको क्लींस की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर ना जाने की बात करता हूं। फिर सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। कुछ नहीं, अपने आप से एक बेसिक क्वेश्चन, क्या हमारा एनर्जी लेवल आज उतना ही है जितना 5 साल पहले था? और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी चैनल में जब आप शेर को गाय या हिरन के झुंड का पीछा करते हुए देखते हैं तो वो बूढ़ी गाय या बूढ़े हिरन को नहीं पकड़ पाता है, वो चोट खाई गाय या चोट खाए हिरन को पकड़ पाता है, क्योंकि वहां ऑर्थोपेडिक सर्जन की फैसिलिटी नहीं है। लंगड़ा के जिंदगी भर चलने से अच्छा है कि उसका वक्त आ गया है। इस चीज को पहचानना होगा। हमने बुढ़ापे को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर ओढ़ लिया है। शर्म की बात तब होती है जब 90 साल वाला 80 साल वाले से कहता है कि तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं। 80 वाला 70 वाले से, 70 वाला 60 वाले से, यहां तक तो ठीक है। जब 30 साल वाला भाई 20 साल वाले भाई से कहता है तू क्या जाने 10 साल में कितनी हड्डियां बूढ़ी हो जाती हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि किसको दोष दिया जाए। लेकिन हकीकत यही है कि हमने अपने आप को बुढ़ापे की चादर में समेट लिया है और उसकी जरूरत नहीं है। अपने आप से एक प्रश्न सिर्फ, क्या हमारा एनर्जी लेवल आज उतना ही है जितना 5 साल पहले था? और अगर आज उतना ही है तो किसी और चर्चा की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि बीमारियां आती कैसे हैं और जाती कैसे हैं। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ। दो छोटे छोटे नियम जिनको तोड़ते तोड़ते हम कहां तक पहुंच गए। जब जंगल में रहते हैं तो मकान नहीं होता, दरवाजे नहीं होते, बैंक बैलेंस नहीं होता, कैरियर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। निश्चिंत जी लिए तो जी लिए, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो कोई बात। दूसरा, कच्चा खाना। आज भी कोई जानवर पका के खाना नहीं खाता है। इसके रिजल्ट्स देखिए क्या होते हैं। जब हम शहर में रहना शुरू करते हैं, तमाम तरह के टेंशन, और ये सब जस्टिफाइड है। कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन, पैसे कमाना, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड इसलिए है, ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग बींग्स जिसमें बच्चे को इंडिपेंडेंट होने में 14-15 साल लग जाते हैं। हाथी का बच्चा 3 महीने में, गाय का बच्चा कुछ घंटों में, हिरन का बच्चा कुछ घंटों में इंडिपेंडेंट होके भागने लगते हैं। क्योंकि अगर नहीं भागेंगे तो जंगल का राजा या जंगल के मांसाहारी पशु उनको पकड़ ले जाएंगे। इंसानों के साथ ऐसा नहीं है, हमको तो खड़ा होने में ही 1 साल लग जाता है। इसलिए जो कुछ व्यवस्था चल रही है इसको स्वीकार कर लेते हैं। अब अपने आप से दूसरा सवाल बिल्कुल सीधा, क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल के नियमों को तोड़ने की वजह से, प्रकृति के नियमों को तोड़ने की वजह से, जंगल से बाहर आने की वजह से और कच्चा खाना छोड़ने की वजह से हमारे शरीर के अंग कुछ कमजोर हो गए हो और उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई हो? ये हम सब के साथ हुआ है। इस बारे में थोड़ी चर्चा आगे करेंगे।
पहली चीज, क्लींजिंग थेरेपी मेरे 3 क्लेम के साथ है। पहला क्लेम, जैसा कि अनाउंस किया गया, मैंने बताया, 90% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी क्योर्ड 100%, वो भी आपके घर बैठे, आपको किसी को भी संपर्क करने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जी हाँ, ये अनबिलीवेबल लगता है, अभी मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। पहला क्लेम, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो जाती है घर बैठे हुए, लो कॉस्ट पे, बिना किसी डॉक्टर को इन्वॉल्व किए हुए, वही मैकेनिक वाला फार्मूला। नंबर 2, एक लिवर क्लीन करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और नंबर 3, इनफर्टाइल कपल में अगर कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है, इनफर्टाइल कपल में अगर कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो 100 डेज में वे नॉर्मली कंसीव करेंगे। ये लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो ठीक होती हैं। और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्योर वर्ड यूज किया हुआ है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन में हर बार रिलीफ वर्ड यूज होता है। और तमाम बीमारियां, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, टैबलेट्स, रंगीन गोलियां खाली रिलीफ देती हैं, और मैं क्योर वर्ड यूज करता हूं। मैं बताता हूं ये कैसे वर्क करता है। जहां पे कम फायदा होता है या नहीं ठीक करती हैं, जैसे कैंसर, पार्किंसंस, इसमें भी कुछ कुछ असर होता है। इसमें हमारे किसी भी ट्रीटमेंट से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। साइड इफेक्ट जरूर होता है कि आप सोचेंगे कि एक प्रॉब्लम ठीक होगी और एक की जगह कई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि जब शरीर से जहर निकलेगा तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, अंगों की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। एक मैं लिस्ट दे रहा हूं क्लीजेस की। एक तो मेरी ये किताबें हैं, हिंदी में है, और एक इंग्लिश में, हिंदी में है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्लींस दिए हुए हैं, किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस, लिवर क्लींस, ज्वाइंट क्लींस, कोलोन क्लींस, हेयर क्लींस, माउथ क्लींस, थायराइड क्लींस, लंग क्लींस, ओवरी एंड पीसीओएस क्लींस, यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस, फेलोपियन ट्यूब क्लींस, वजाइना क्लींस, कंसीव नेचुरली। इसके अलावा भी क्लींस हैं, माउथ क्लींस है, लंग क्लींस है, जिनके बारे में किताब नहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे थे। वो सब मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आगे चलते हैं। ये हुई लिस्ट क्लीनिंग की। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मेरी वेबसाइट दी हुई है, ये सब वहां मिल जाते हैं। सब कुछ फ्री डाउनलोड है, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं। हम शुरुआत कर रहे हैं ये बेसिक बताने के बाद कि बीमारियां क्यों आती हैं। एक दो उदाहरण और भी दूंगा। ये अंग आपके सामने है, आप सब इसको पहचानते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस काम आता है? हम सब जानते हैं कि किडनी खून साफ करती है, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। लेकिन मुझे इसमें कुछ और भी कहना है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से किडनी के बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं, और ये आपके सामने है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, आरबीसी बनाने की स्टिमुलेशन। थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा इनके बारे में। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना आइडिया है कि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन से ही कैल्शियम लिंक्ड है। अक्सर हमें घर में पता चलता है कि कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया है। ये मेरी गारंटी में कवर्ड है। 30 डेज के ट्रीटमेंट में कैल्शियम का लेवल ठीक हो जाता है। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये पता चलता है कि कैल्शियम का लेवल डाउन हुआ है और 3 महीने 6 महीने तक आपने तमाम फूड सप्लीमेंट्स लेके कोशिश की है उसको ठीक करने की, तो मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि 6 महीने सारे नियम पालन करने के बाद कितने केस में डॉक्टर ये बोल देते हैं कि अब आप घर जाइए, आपका कैल्शियम लेवल ठीक हो गया है। 6 महीने तक सारे नियम पालन करने के बाद कितने केस में डॉक्टर ये बोल देते हैं कि अब आप घर जाइए, आपका कैल्शियम लेवल ठीक हो गया है? मुझे मालूम है ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं?
डॉक्टर के पास तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। डॉक्टर ने बता दिया ये टैबलेट आपके लिए अच्छी रहेगी। हम एक चीज तो भूल ही गए कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों है। हमारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में जो खाना खाया जाता है उसमें तो कैल्शियम होता है ना, सफिशिएंट होता है। कमी इस बात की थी कि शरीर ने कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि जो कारण मैंने बताए थे, कच्चा खाना और जंगल में रहना, वो नियम तोड़े गए। उनकी वजह से शरीर के अंगों की कार्यक्षमता कम हुई, उनकी वजह से किडनी की कार्यक्षमता कम हुई, और किडनी का जो फंक्शन था एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्प्शन का, ये कम। और जब ये कम हो जाएगा तो उसी खाने में से हम न विटामिन डी पा पाएंगे और न कैल्शियम पा पाएंगे। कमी कहीं और थी, हम इलाज कहीं और ढूंढ रहे थे। और जैसे ही शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है, हमारे तमाम पैरामीटर्स ठीक होने लग जाते हैं। और ये सारी प्रोसेस 100 डेज की है। 3 बार लिवर क्लींस करना, 2-3 बार किडनी क्लींस करना, पेट पे मड पैक रखना, ये सब करने से, थोड़ा धूप लेना, इससे अपने आप एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। 1 महीने में आप आगे बढ़ जाते हैं। ये किडनी के फंक्शन थे। इसके बाद सिम्टम्स, पीठ का दर्द, ये भी मैं जरा बताने की आवश्यकता समझता हूं। मेरा प्रश्न सभा से ये है कि क्या कभी हमारे सदस्यों ने, श्रोताओं ने ऐसा महसूस किया है कि उनके रिश्तेदार या फ्रेंड्स में किसी को या स्वयं को पीठ के दर्द की शिकायत रही है? और जब पीठ के दर्द की शिकायत रही हो तो हम क्या करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये जानना जरूरी है। एक्सरे, एमआरआई जो आपको कराना हो करा लीजिए, मेरे लिए वो समस्या का विषय नहीं है। डॉक्टर ने एसओएस टैबलेट लिख के दे दी, वो भी समस्या का विषय नहीं है। आपने पीछे लगाने के लिए मूव, बाम, तमाम तरह के ऑर्नामेंट लेके रख लिए, वो भी ठीक है। तमाम सावधानियां कि भारी वजन नहीं उठाना है, सीढ़ी पे चलते हुए सावधानी रखनी है, पानी की बाल्टी लेके निकलना, ये सब भी ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि सारे नियमों का पालन करने के बाद क्या 3 महीने 6 महीने बाद आपके डॉक्टर कह देते हैं कि अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया, अब आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है? यही फर्क है रिलीफ मेजर में और क्योर में। मैं क्योर की बात करता हूं। पीठ का दर्द आया क्यों? सबसे पहले तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 100% केसेस में जब आप एक्सरे एमआरआई कराते हैं, आप तो डर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर को मालूम होता है कि एमआरआई और एक्सरे क्लियर निकलेगा। और जब एमआरआई और एक्सरे क्लियर निकलता है, उसके पहले आप तो सारे प्रयास कर रहे होते हैं कि बस ये रिपोर्ट ठीक निकल आए। घर पे पूजा पाठ भी हो रही हो सकती है और रिपोर्ट ठीक निकलने से आप बहुत खुश हो जाते हैं। समस्या तो वहीं की वहीं रही। क्या आप ठीक हो गए, आपका दर्द खत्म हो गया? मैं बताता हूं। अगर पीठ के दर्द का कारक हमको एक्सरे और एमआरआई में नहीं मिल रहा है तो है कहां पे? बिल्कुल सिंपल है। 30, 35, 40 साल की उम्र में आज की तारीख में पीठ का दर्द आना बहुत आम बात है। क्यों? प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ, नियम हमने तोड़े, इसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए। जब टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए तो जब वो थ्रेशोल्ड को पार कर गए, तब ब्लड ने पेन का सिग्नल दिया। L4 L5 के बीच में पेन इसलिए आता है क्योंकि वो वीक स्पॉट है। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा जमा होने की वजह से हमको दर्द का एक सिग्नल आता है, एक वीक स्पॉट से। ये शरीर का मैसेज होता है कि अब समझ जाओ, क्योंकि शरीर ने कभी कहा नहीं है कच्चा खाना छोड़ने के लिए। तो अब आप देखिए क्या होता है। जैसे ही हमने टॉक्सिन्स रिमूवल का ये प्रोग्राम किया, किडनी क्लींस, लिवर क्लींस, एसिडिटी क्लींस, 2-4 दिन के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाता है, पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल गणित की तरह सिंपल है, इसमें कुछ भी लगता नहीं है। बस फर्क ये है कि इन बातों की चर्चा कहीं और न करके प्रयोग करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर प्रश्न उठने लगते हैं कि ये कौन सी थेरेपी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्टरनेट थेरेपी बहुत पावरफुल है। अगर वो इतनी पावरफुल नहीं होती तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाता, नीलेश मुझे आप तक पहुंचाते हैं।
आगे चलते हैं। ये हुई यूरिन में ब्लड आना, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड ये क्वांटिटी ऑफ यूरिन, हाई लो ब्लड प्रेशर, किडनी यूरेटर स्टोन, पथरियां गल जाती है किडनी में, यूरेटर में पथरियां जो होती हैं, जैसे एक्वारेजिया में गोल्ड गल के निकल जाता है ना, इसी तरह से ये पथरियां यूरिन के साथ गल के निकल जाती है। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा था मैंने संकेत आपको दे दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि किडनी क्लींस कैसे होगा। ये 3 चित्र मैंने आपको सामने दिखाए हुए। एक है कॉर्नसिल्क जो बीच में है, जिसको मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। ये भुट्टे के बाल है। जी हाँ, वही भुट्टा जो 30 रुपए का आप बाजार में खाते हैं, उसके ये बाल होते हैं। इनको सुखा के, ये करीब 50 से 100 भुट्टों के बाल होंगे, क्योंकि इनको निकाल के सुखाना पड़ता है। उसके लेफ्ट में पार्सली है, ये धनिया की फैमिली की पत्ती होती है। ये बॉम्बे में क्राफोर्ड मार्केट में मिलती है, जाड़े के दिनों में तकरीबन 200 रुपए किलो। और राइट साइड में तरबूज के बीज दिए हुए, तरबूज, वाटरमेलन। जी हाँ, इनके बीजों में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैं भुट्टे के बाल की चर्चा करता हूं। इसका रेफरेंस एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मेरे ज्यादातर ट्रीटमेंट्स का कोई रेफरेंस कहीं में नहीं मिलता, लेकिन भुट्टे के बाल का रेफरेंस आयुर्वेद में और यूनानी तिब्ब में मिलता है। कि बाल लीजिए 50 ग्राम के करीब, अच्छी क्वालिटी के, प्रॉपरली ड्राइड, इनको पानी में उबालिए। उबालने का तरीका यहाँ पे दिया है, पानी में उबालिए। मैं इनको 3-4 बार उबालता हूँ। मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल इस्तेमाल करता हूँ। इसका जो पानी निकल के आता है उसको छान लीजिए, बाल जो बच जाते हैं उसमें फिर से पानी डालिए, फिर उबालिए। मैं जो बाल यूज करता हूँ उसमें 6 बार तक दवाई निकलती है। ध्यान दीजिएगा, दवाई बाल में है, पानी में नहीं है। तो ये चर्चा व्यर्थ है कि हमने 1 लीटर पानी पिया, हमने 2 लीटर पानी पिया। चर्चा सही ये उचित है कि हमने कितने ग्राम अच्छी क्वालिटी के बालों को उबाल के उनका पानी पिया। तो ये पानी कुल मिला के 1-1.25 लीटर जितना भी बने उसको पी जाइए, 1 दिन में, 2 दिन में। और इसमें असर क्या क्या आता है ये बताने जा रहा हूं। पहले तो देखिएगा, ये बाल हुए जो मैंने आपको बताया। यही ट्रीटमेंट पार्सली के साथ भी करना है, यही तरबूज के बीज के साथ भी करना है। ये प्रोसेस दी हुई है बनाने की, और ये पत्तियां गल जाती हैं, शरीर से जहर निकल जाता है, बॉडी में फ्रेशनेस आ जाती है, आंखों के नीचे की झाइयां क्लियर हो जाती है, आंखों का जो स्क्लेरा जो व्हाइट कलर का होता है इसमें शाइन आ जाती है, स्किन टोन में इंप्रूवमेंट आ जाती है, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाती है, नींद ज्यादा गहरी आती है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कम होती है, प्रोस्टेट में फर्क पड़ता है, लेडीज को पीएमएस में फर्क पड़ता है, और ये ठीक ठाक और काफी होता है। ध्यान दें, बाल अच्छी क्वालिटी के लिए। और ये आपको बाल आपको अपने पास के जो भुट्टे वाले हैं, हाँ एक मजेदार बात ये, जो आपके घर के आसपास भुट्टे बेचते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि हमें बाल चाहिए, तो काफी पॉसिबिलिटी वो आपसे कह दें, भैया गुर्दे के लिए लेके जा रहे हो क्या। बस उनमें और मुझमें फर्क यही है कि आज नीलेश की पहचान की वजह से मैं आप तक पहुंच पाया हूं, और उनके पास आप तक पहुंचने का साधन नहीं है। वरना ये औषधि बहुत समय से इस्तेमाल की जाती रही। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर भी लेने। ये है एसिडिटी। आज से 2 साल पहले चेचक और प्लेग बीमारियां हुआ करती, महामारी होती थी, गांव के गांव साफ हो जाए। कर्सी, WHO एंड लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, ये सब खत्म हो चुके हैं। 50 साल पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आना शुरू हुआ, और 25 साल पहले, मुझे नहीं याद था 25 साल से पहले 19th सेंचुरी में एसिडिटी इतनी रही, वैसा याद नहीं देता। आज हर घर में दूसरा व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है, और इसके परिणाम बहुत घातक है। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। आप सब एजुकेटेड हैं,
आप जानते हैं कि पीएच क्या होता है? 7 से नीचे का पीएच एसिडिक होता है, 7 से ऊपर का पीएच अल्कलाइन होता है। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। जंगल की हवा अल्कलाइन होती है क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ भरे पड़े हैं। जंगल का पानी अल्कलाइन होता है। प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। शहर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम टॉक्सिन्स हवा में मिले रहते हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, व्हीकल्स यहाँ पे है, पॉपुलेशन। इस बारे में डिटेल में जाने की चर्चा नहीं है, बस सिर्फ बेसिक की जंगल की हवा अल्कलाइन है और शहर की हवा एसिडिक है और काफी एसिडिक। जंगल में बहता हुआ पानी अल्कलाइन होता है, वो सूरज की धूप से साफ होता है। शहर में स्टोर किया हुआ पानी एसिडिक होता है क्योंकि इसको सफाई के लिए क्लोरीन से साफ किया जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि उसका पीएच 7 से कितना नीचे है, प्रश्न ये है कि उसका पीएच 7 से नीचे होके वो अल्कलाइन नहीं रह गया है और वो एसिडिक हो गया, फिर वो 6.95 हो, 6.90 हो, ये बात की बात, वो 7.10 पर नहीं। अब आप सोचिए, ये हुई हवा की बात और ये हुई पानी की बात। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, सारा कच्चा खाना, वेजिटेबल्स खास तौर से, क्योंकि ह्यूमन बाई टेम्परामेंट बेसिकली वेजिटेरियन है। खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, गाजर, जंगल में उगने वाला कुछ भी खेत से निकाल के खाइए, सब अल्कलाइन है। लेकिन पका खाना अपने अल्कलाइन गुणों को कम कर पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे खाने में पाई जाने वाली ज्यादातर चीजें, चाय, कॉफी, सभी तरह की शराब, सभी तरह का नॉनवेज फूड, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, सब कुछ एसिडिक है। हमारा शरीर करे भी तो क्या करे, कहीं ना कहीं तो सीमा रेखा होगी ना, और यही कारण है कि हमारे शरीर में एसिड्स के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने दिया है ब्लड का पीएच 7.4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ब्लड को रन करने के लिए, हार्ट को रन करने के लिए ब्लड का पीएच 7.4 चाहिए। अगर नहीं होगा तो दो ऑप्शन है, या तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स जो ब्लड को चाहिए हैं वो नहीं मिल सकती अगर ब्लड में अल्कलाइन लेवल सफिशिएंट नहीं रहा तो। दो ऑप्शन बचते हैं, या तो डेथ हो जाए, लेकिन नेचर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। अगर नेचर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है तो रास्ता क्या है? कुछ ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है जो बॉडी में कहीं भी अल्कलाइन हो उसको खींच के लाके ब्लड तक पहुंचाते हैं। और ये अल्कलाइंस कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम जो भी हैं, इनको ब्लड आपकी मांसपेशियों और हड्डियों से खींच के लाता है, और इसीलिए आपके शरीर में थकावट रहती है, कमजोरी रहती है और दर्द रहता है। और दर्द दिखाने आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं जो रिलीफ मेजर के लिए 8-8 घंटे पे टैबलेट देते हैं, लेकिन कारण तो कहीं और था। और जैसे ही हम एसिडिटी के इस कारण को दूर कर पाते हैं, ये तमाम दर्द और थकान ये सब निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स आप परिचित हैं, ये इलाज है। ये हरी सब्जियों का जूस है। इसमें कौन कौन सी सब्जियां यूज होती है ये हम बताने जा रहे हैं। एक बार आपको जूसर की फोटो भी शायद दिखा सकेंगे। ये दाहिने हाथ पे जूसर बना हुआ है, ये कुछ 15-20 हजार रुपए का आता है। और इसमें एक चीज खास और है, सब्जियां सिर्फ ताजी लें। प्रकृति ने नहीं कहा था कि 2 दिन पुरानी सब्जियां इस्तेमाल करें। सब्जियां ताजी लें। अगर ताजी मिलने की कोई समस्या है
तो अपने वेजिटेबल वेंडर को बता दें, सब जगह 11 बजे ताजी सब्जी आती है। मैं मार्केट से सुबह 5:30 बजे लेता हूँ, क्योंकि मैं इस जूस का फैन हूँ और मैं डेली 1-2 लीटर ले लेता हूँ औसतन। और इसके साथ ही मेरा स्लोगन भी है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। मैं अपने खाने पीने में किसी तरह का कोई बंधन नहीं रखता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं कोई मेडिसिन भी नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सब्जियों की लिस्ट दी हुई है, पुदीना है, पार्सली है, मूली, गाजर, जो आप समझ में आए वो ले लीजिए। इसमें आपको हमसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जूस के लिए जूस यूज कर लीजिए। और इसमें सबसे नीचे एक जगह दिया होगा केमिकल फार्मूला, क्लोरोफिल का और हीमोग्लोबिन का काफी आसपास का होता है, ये दिया हुआ है। और इसमें हीमोग्लोबिन में अगर रिक्वायरमेंट Fe का है, फेरस का है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम को क्लोरीन और फेरस से रिप्लेस करके ब्लड बनता है। यही नेचर की प्लानिंग थी कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कच्ची सब्जियां इस रूप में खाई जाए। अगली चर्चा पे आते हैं। ये पैरासाइट क्लीन्स है। हम सभी की बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं। इसका प्रूफ देता हूं। न्यूली बॉर्न बेबी जिसकी मां ने 9 महीने तक कोई दवाई नहीं खाई है और नॉर्मल डिलीवरी है, जरा ध्यान दीजिएगा, उस बेबी के यूरिन, पसीना और सलाइवा में कोई स्मेल नहीं होती है। यही नेचर की प्लानिंग थी। एक्चुअली नेचर ने 2 स्मेल दी हुई है। एक ताजा कटी घास की खुशबू जो सभी को अच्छी लगती है, और दूसरा सूखी मिट्टी पर पहली बरसात की खुशबू। इसके अलावा नेचर ने नॉर्मल रूटीन में, फूलों को छोड़ दिए, फूलों का कारण अलग है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे स्मेल है। नॉर्मल लाइफ में स्मेल नहीं है। तो मैंने बेबी के बारे में बताया, बेबी को कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन अराउंड 100 डेज पर जब वो पहली बार अपने जीवन में पके खाने की खीर के साथ शुरुआत करता, खीर नेचुरल नहीं है क्योंकि इसमें दूध को पकाया गया है, और वहां से हल्की सी ये स्मेल डेवलप होती है, और वहीं से बॉडी में पैरासाइट्स आना डेवलप होते हैं, शुरू करते हैं। ये पैरासाइट्स लाइफ लॉन्ग चलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। कम ज्यादा रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरासाइट्स बाय डेफिनेशन बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो जिंदा रहते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं देते, लेकिन आपके शरीर से बहुत कुछ ले लेते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए ये कारक बनते हैं। ये मैंने कुछ टाइप्स दिए हैं, ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसके लिए हम क्लारिकिया टिंचर, जैपर, पल्सर और कोराइडस फीवर यूज करते हैं। मैं आपको खाली इसको दिखाना चाह रहा हूं कि ये देख लें। ये इस तरह का एक यंत्र होता है। ये इसमें बॉडी को माइल्ड करंट दी जाती है, और ये माइल्ड करंट निगेटिवली चार्ज पैरासाइट्स को ब्लास्ट कर देती है और वो मर जाती है और लाइफ बेहतर होती है। एक चर्चा और, हर बार ये मानिएगा कि ये सब क्लीन अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिवर क्लीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए से आती है, आजकल इसको आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में बनने वाले कोई भी क्लींजिंग टिंचर्स इफेक्टिव नहीं है। उसको पीने से उल्टी, जी मचलाना, ये सब की प्रॉब्लम आती है। वो बस बेच रहे हैं नाम के लिए। ये काफी समस्या आ गई है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने तो इस अभियान को शुरू किया था कि लोग घर बैठे आसानी से स्वास्थ्य लाभ करें, लेकिन कई लोगों ने इसे व्यापार का मुद्दा बनाया। ये मैंने जैपर की टेक्निक्स बताई हुई हैं। ये कोलाइडल सिल्वर है। इससे पानी में 150 पार्टिकल्स पर मिलियन के हिसाब से, ये 150, 110, 100 जो भी संख्या है, ये पार्टिकल्स पर मिलियन के हिसाब से कोलाइड्स आके बॉडी को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने मेन क्लीज के ऊपर, और इसके मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी बातचीत लॉजिकल लग रही है तो जल्दी से जल्दी एक लिवर क्लींस करें, और एक लिवर क्लींस करने के साथ ही
आप देखेंगे कि हेल्थ में कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है वजन के हिसाब से, जिसका वजन 2 किलो है। लिवर करीब 1.75 केजी का होता है। ये बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, इसके तमाम फंक्शंस होते हैं, जिसमें फूड एब्जॉर्प्शन, फूड की प्रोसेसिंग, एमिनो एसिड्स, गॉल ब्लैडर के लिए बाइल बनाना, बाइल बना के स्टोर करना गॉल ब्लैडर में, ये सब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बहुत ज्यादा चर्चा इस पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्लींस कैसे करें। फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गॉल ब्लैडर में स्टोन, पित्ताशय की पथरी में अगर स्टोन्स हैं तो ये रामबाण इलाज है। एक रात में बिना दर्द के डायरिया में स्टोन्स निकल जाते हैं। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं कि हुआ क्या ये। तो चाहे पित्ताशय की पथरी हो, चाहे लिवर, चाहे किडनी, यूरेटर की पथरियां हों, ये दोनों के लिए हमारी क्लीजिंग थेरेपी रामबाण इलाज है। रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, ये सब बहुत आसानी से क्योर होती है। आपको किसी को भी संपर्क करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस मैंने आगे दिया हुआ है, इस प्रोसेस को बस प्रैक्टिस कर लीजिए। आज शाम को 6 बजे अगर शुरू हुआ तो कल 12 बजे तक आपको रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस पूरी तरह से पेनलेस है, लेकिन आपके शुभचिंतक आपसे कह सकते हैं कि किसी के सुपरविजन में करो या कोई स्टैब्लिश हो, लेकिन मुझे ये कहना है इसमें सुपरविजन की कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत हो तो हमने वॉलंटियर्स के नाम दिए हुए हैं, 200 के करीब वॉलंटियर्स हैं मेरी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन किसी की भी जरूरत नहीं है। आप फटाक से करना शुरू कीजिए और आप कर ले जाएंगे, और कल सुबह तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एलर्जी एलर्जी कम हो जाती है, और 3-4 हफ्ते में करके ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। मोस्टली प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। डाइजेशन जंप स्टार्ट लेता है, कुछ भी खाना पीना। हाँ, मैंने वो बताया था कि मैं कहीं भी कुछ भी खाता पीता हूँ, किसी भी तरह का पानी, किसी भी तरह का खाना, रेस्टोरेंट में हो, ढाबे पे हो, कोई बंधन नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। और बंधन मुक्त जीवन एक बहुत बड़ा चार्म होता है, और दवा मुक्त जीवन। और बार बार मैं ये इसलिए कहता हूँ कि आपको भी इसके लिए टेम्पटेशन हो कि हाँ, ये हमको करना चाहिए। ये मैंने बताया। ये मैं बताना चाहता हूं कि कैसे वर्क करता है लिवर क्लींस की प्रोसेस में। लिवर गॉल ब्लैडर क्लींस की प्रोसेस में हमारे लिवर से, गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट से, और जो ज्वाइंट है बाइल गॉल ब्लैडर का जितना पे लिवर से जुड़ा रहता है, वहां पर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो ज्यादा जमा होता है वो निकल के डायरिया से बाहर हो जाता है। ये फिजिकल फॉर्म में होता है। मैं आपको आगे दिखाई देता हूं कि कैसे ये निकलती है। इस तरह के स्टोन्स निकलते हैं, इस तरह के स्टोन्स डायरिया में निकलते हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे। इनकी साइज छोटी हो सकती है, बालू के बराबर हो सकती है, सरसों के दाने के बराबर हो सकती है, राई के दाने के बराबर हो सकती है, मटर के दाने के बराबर हो सकती है, सुपारी के बराबर भी हो सकती है। अगर आपसे डॉक्टर कहें कि 4 सेंटीमीटर का स्टोन निकलेगा कैसे, आंखें फट जाएंगी, तो आप उनको ध्यान दिला सकते हैं स्टोन लंबाई से क्यों, चौड़ाई से निकलेगा ना। नेचर अपना प्रॉपर पाथ फॉलो करेगी, और एप्सम सॉल्ट बाइल डक्ट को खुला देता है, और ऑयल अंदर से प्रेशर डालता है इसको निकालने के लिए। ये बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस में कराता है, इससे कहीं भी दर्द नहीं होता, और ये चर्बी का बना होता है, तो हर स्टेप पे ये फिसलता चला जाता है, कहीं रुकता ही नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से इतनी चर्बी गंदी वाली निकल जाएगी तो होगा क्या। आपके शरीर में उंगली के दोनों पोर, बाएं हाथ की उंगली, दाहिने हाथ की उंगली, इसके बीच में 6 फीट की दूरी है, लेकिन जो खून है वो बिल्कुल एक सा है। ये ब्लड की प्रॉपर्टी है, ब्लड का फंक्शन है ये, कि यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना। ब्लड जब पाता है कि एक जगह पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, तो ब्लड जगह जगह से, जहां जहां पे उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिला था, वहां से वो खींच के लेके आता है।
यही इस डायग्राम में मैंने बताया है कि जहां पे ब्लड को लगता है, और ब्लड का फैसला कभी गलत नहीं होता। मैं किसी भी पैथोलॉजी टेस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना इलाज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से कराएं। और सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं, क्योंकि अपनी तकलीफ के बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। जब लिवर, गॉलब्लैडर, बाइल डक्ट से ये निकल जाएंगे स्टोन्स, तो वहां पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा और ब्लड उसको जगह जगह से खींच के लाएगा, और इस तरह से जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे, हार्ट की फंक्शनिंग और स्मूथ होगी, वहां पे ब्लड सप्लाई स्मूथ होगी, और स्मूथ के होने के साथ आप हार्ट अटैक के खतरे से निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि अगर लिवर क्लींस करने के पहले वाले लेवल पे आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, तो अब तो आपकी आर्टरीज अंदर से क्लीन हो चुकी हैं, और इन विषैले तत्वों का जमावड़ा बनने में 6 महीना, 1 साल नहीं, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। 6 महीने तो मैंने सुरक्षा की दृष्टि से कहे हैं, इससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और अगर खाने पीने में कोई बंधन ना हो, तब भी आप 6 महीने तक हार्ट अटैक के लिए सुरक्षित। ये मैंने बताया गणित की तरह ऐसा होता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये 2 सामान इस्तेमाल करने होते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और एक एप्सम सॉल्ट है। ये प्रोसेस दी हुई है। आज लोगों से कहूंगा मैं कि ये पीपीटी शेयर कर दें दर्शकों के साथ, उसमें सब दिया हुआ है, ये शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आज करना है तो 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। जो दवाइयां खा रहे हैं वो चलती रहेंगी। डायबिटीज के पेशेंट्स अगर कहेंगे कि उनको भूखे पेट दवाई नहीं खानी है, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एप्पल ले लीजिए, मौसम्बी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, अनार। शाम को 6 बजे पहली डोसेज, 8 बजे दूसरी डोसेज, 10 बजे ऑयल लेना है। सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट, 8 बजे फिर ऑयल, 10 बजे फिर एप्सम सॉल्ट। आज शाम से ही डायरिया शुरू हो जाएगा, कमजोरी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज तक किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। किसी ने बताया कमजोरी वगैरह का, तो मैंने कहा बियर कर लेते हैं उसको, या थोड़ा कोई फ्रूट ले लेते हैं, या नारियल पानी ले लेते हैं उस बीच में। खरबूजा ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, मौसम्बी का जूस ले लीजिए, बस इससे ज्यादा तकलीफ नहीं आती। आगे चलते हैं। ये मैंने बताया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रीपैक्ड वाला नहीं लें। लालच के चक्कर में कई दुकानें रीपैक्ड वाला ऑयल बेच रही हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की लाइफ बहुत कम होती है, और अगर इसको प्लेट में खुला छोड़ दिया जाए, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है ये चमत्कारी है। चमत्कारी इसलिए, आपके शरीर से जहर निकाल के ले आना ये अद्भुत प्रक्रिया है, ये आसान नहीं है। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जहर निकल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं ओरिजिनल पैकिंग वाला सील पैक जो 250 ml का है वो लीजिए, उस पर रीपैक्ड ना लिखा हो। क्योंकि रीपैक्ड का मतलब ये है कि उसको 2, 3, 4 महीने पहले खोला गया, और जब खोला गया इसको, तब ये हवा लगने से सिर्फ इतना समझने कमजोर हो जाता है, और कम पथरियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। ऐसे में दोष क्लीनिंग थेरेपी नहीं है, वो ऑयल है। ध्यान रखना। और यही हाल हमको भुट्टे के बाल के साथ भी करना है, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ये पथरियां निकल गई, और इसके साथ ही लिवर क्लीन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। ये हमारा अगला क्लींस है, ज्वाइंट क्लींस। 45 डेज का प्रोटोकॉल है इसका। एप्पल साइडर विनेगर, शहद और ब्लैक मोलेसिस के साथ इसको हम 45 दिन में करते हैं। एक ये है हमारा थायराइड क्लींस। ये अश्वगंधा, अदरक, लेमन, धनिया पत्ती, गाजर और खीरा, ये 30 डेज का है। बताना खाली इसलिए है कि आपको पता रहे कि ऐसे इलाज भी होता है। एक ये फैट क्लींस, चर्बी घटाव का है। ये 7-8 किलो चर्बी एक बार में निकल जाती है 1 महीने के इलाज में। इसमें एचसीजी, ह्यूमन कोराइनिक गोनाडोट्रोपिन, इस हार्मोन का यूज होता है। लेकिन इसको मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर किसी को कैरियर के लिए, मैरिज के लिए, या क्रॉस रेफरेंसेस के लिए, जॉब के लिए, या फिल्मों में काम करने की जरूरत है, तब हम इसकी बात करते हैं। अब हम आ रहे हैं छोटी सी चर्चा गायनेक क्लींस के बारे में।
100-200 साल पहले सबके पीरियड्स मून के साथ सिंक होके 28 डेज में आया करते थे। कुक्ड फूड और जंगल के नियम तोड़ना, इसने साइकिल्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस कुछ और वजहों से आया, जिनमें से दो मेन थी। पहली कंट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरी पिल्स टू पोस्टपोन पीरियड्स। इन दोनों ने साइकिल्स को डिस्टर्ब किया। आप सब जानते हैं पहले पीरियड्स 14-15 साल की उम्र में आते थे, आज 7 और 8 साल की उम्र में आ रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है ये, लेकिन हमको ये स्वीकार करना होगा कि ये हो चुका है ये बदलाव। दूसरी बात, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी जहां पे बताने के लिए भाभी चाची हुआ करती थी। आज डबल इनकम के चक्कर में अक्सर मां के पास भी समय नहीं होता। इन चीजों को स्वीकार कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसका रास्ता क्या है। इस बारे में डिम्पल की वाइफ, नीलेश की वाइफ डॉक्टर डिम्पल गोयल, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके साथ मिलकर मैंने 13 वीडियो बनाए हैं। एक एक चीज को क्लेरिफाई किया है रिगार्डिंग गायनिक प्रॉब्लम। यहां पे खाली बेसिक्स बता रहा हूं मैं। तो पहले कारण समझिए इनकी वजह से, और उसके बाद इलाज। हमारा ओवरियन पीसीओएस क्लींस है, कई बार सिस्ट की या अन्यथा प्रॉब्लम दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। हम डिटेल्स में नहीं जाते, हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। दालचीनी, सिनेमन, उनकी स्टिक्स लीजिए। दालचीनी की डंडियां प्लास्टिक या कांच के या कागज के गिलास, प्लास्टिक के या स्टील के या कागज के गिलास में 3/4 पानी भर के उसमें स्टिक्स डाल दीजिए, करीब 10 से 15 ग्राम। इसको फ्रीजर में जमा दीजिए। कांच का गिलास मत लीजिएगा, वो टूट जाता है। फ्रीजर में जब ये पूरी तरह से जम जाए तब इसको निकाल लीजिए। पानी जब जमता है तो बर्फ बनने की प्रोसेस में वो फैल जाता है, 9% फैल जाता है, और इसके साथ ही वो दालचीनी के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर डालता है, जिससे अंदर से मेडिसिन निकल के उस बर्फ या पानी में आ जाती है। वो मेडिसिन हमारे काम की। दालचीनी उसके बाद ये जब जम जाए इसको बाहर निकाल के रख लीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद दालचीनी को चूस के फेंक दीजिए, और ये पानी आपके इलाज के लिए है। 2 दिन में 2 बार। इसी दालचीनी को, मीन्स फ्रेश दालचीनी को, ये नहीं, ये अल्टरनेट ट्रीटमेंट। हमको दालचीनी के अंदर से मेडिसिन निकालनी है, और दालचीनी को पीसने से या खाने से मेडिसिन नहीं आएगी। दालचीनी को जब दूध का दही जमा रहे हैं, उस समय दालचीनी 10 से 15 ग्राम डाल दीजिए। दही वाले बैक्टीरिया दालचीनी से मेडिसिन निकाल के दूध से दही जमने की प्रोसेस में वहां तक पहुंचा देंगे। दही जमने के बाद दालचीनी चूस के फेंक दीजिए, और ये दही आपके इलाज के लिए तैयार है। दिन में 2 बार, 2 दिन तक, इतने में असर आएगा। कई बार समस्या सुनाई देती है फैलोपियन ट्यूब क्लींस की। ये फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। इस बारे में इंडिया में जो मैं कहने जा रहा हूं वह प्रयोग नहीं हुए। मेरे कहने पे कई लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया और उनको असर मिला। फैलोपियन ट्यूब क्लींस सिर्फ मसाज है, खुद मसाज करना है अपनी फैलोपियन ट्यूब को। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है। जब फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस होते हैं तो सजेस्ट किया जाता है कि सर्जरी करा लीजिए। आप सब समझ सकते हैं कि ये सर्जरी कितनी ज्यादा कॉस्टली है। फैलोपियन ट्यूब की साइज 3 से 4 सेंटीमीटर की काफी पतली होती है, लेकिन अगर उचित प्रकार से मसाज कर दिया जाए, इनका लेडी खुद मसाज कर ले, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैं खाली गाइडेंस दे रहा हूं कि ये मसाज घर बैठे की जा सकती है और कैसे करनी है। इस बारे में विदेशों में बने हुए वीडियो देख लीजिए, इंडिया में बना हुआ कोई वीडियो नहीं है, और उसमें बिल्कुल प्यार से गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, और सेल्फ मसाज है ये, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। ये हमारा बहुत पावरफुल
क्लींस है, यूट्रस इनफर्टिलिटी क्लींस। एक छोटी सी बात की कल्पना करके सोचिए, पीरियड अचानक बंद हो जाने का मतलब क्या? उसका मतलब ये हो गया कि जो भी ब्लड अंदर पड़ा रह गया, चाहे 1 चम्मच हो 2 चम्मच, बाकी के 22-25 दिन उसके निकलने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। इसी तरह से कल्पना कीजिएगा कि अगर दाल पुरानी पड़ी रह जाए 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, क्या हालत होती है। ये तो खून पड़ा हुआ है अंदर जो डेड है। और यही कारण है कि महिलाओं को पीरियड्स इरेगुलर होने में विभिन्न समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो बासा पुराना खून पड़ा हुआ है और उसके निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। वो वहां सड़ रहा है तो लोअर एब्डोमेन में पेन आता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, थकान आती है, और हम उसके लिए टैबलेट लेते हैं। मेरा कहना बहुत ही सिंपल है, इसका एक इलाज है। इसके लिए हम लोअर एब्डोमेन पे कैस्टर ऑयल और फेलानिन का पैक रख के, उसके ऊपर पॉलीथीन रख के, उसके ऊपर हीटिंग पैड रख के दिन में 2 बार 2 दिन तक 20-20 मिनट के लिए ये प्रोसेस करते हैं और चमत्कारी रिजल्ट्स आते हैं। वो पुराना स्टेल ब्लड या तमाम टॉक्सिस वेजाइना से निकल के बाहर आ जाते हैं और अद्भुत ताजगी का एहसास होता है। इसके साथ ही गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को सुखा के उबालना, ये भी एक तरह का यूट्रस क्लींस है। बताने का उद्देश्य खाली ये है कि आपको ये बातें पता रहें और जितने प्रयोग कर पाए करें। सबसे पहले लिवर क्लींस करें, उसके बगैर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। ये बार बार समझ लेना जरूरी है। लिवर क्लींस से स्टार्ट करें। वेजाइना में सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, अंदर से लुब्रिकेशन होता है, सफाई होती रहती है, लेकिन जो कारण मैंने बताए थे इसकी वजह से आजकल ड्राइनेस बहुत कॉमन हो गई है। इसके लिए कुछ 3-4-500 रुपए का ये बूस्ट मिलता है, इससे पानी से अंदर सफाई करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये कंसीव नेचुरली है। अगर किसी को दिक्कत है तो पहले लिवर क्लींस, किडनी क्लींस करके साथ में गायनेक क्लींस करें 100 डेज में। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। प्रकृति का नियम है, प्रोक्रिएशन मतलब प्रजनन को बढ़ावा देना। किन्हीं कारणों से हमारे अंगों की कार्यक्षमता कम हो गई। जब कार्यक्षमता कम हुई तो ये समस्या आई। अगर हम उसी कार्यक्षमता को बढ़ा देते किसी भी तरीके से, और हमारे पास तो बहुत आसान तरीका है, सारा का सारा क्लीनिंग हमें घर पे करना है, करके बढ़ा दिया और बढ़ाने के साथ साथ प्रकृति ने अपना काम किया और ये 100 डेज में काम हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक ये होमोलॉग्स के बारे में चर्चा है। जब हम कंसीव नेचुरली की बात करते हैं तो हम पुरुषों को भी ये सारे क्लींस कराते हैं। होमोलॉग्स के बारे में जानना जरूरी है कि कनेक्टिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं। जैसे अगर मेल्स में ओवरी है, सॉरी फीमेल में ओवरी है तो मेल में टेस्टिस है। इस तरह से हर ऑर्गन का करस्पॉन्डिंग ऑर्गन दिया गया है। ये मेडिकल साइंस से कनेक्ट किया गया है। ये मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप कभी भी हमको मेल फोन कर सकते हैं और इसके साथ हम ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। एनी क्वेश्चंस? सर विस्की पीने से कुछ कम होएगा सर? वो क्या चीज? विस्की पीने से हाँ, आर्टरीज में से भी ब्लड ब्लॉकिंग से भी कम होएगा क्या? विस्की मतलब शराब पीने से हाँ, क्या कम होगा? शराब पीने से कुछ लोग बोलते हैं ब्लड अच्छा क्लीन होता है करके बोलते हैं, इज इट? वो शराब बेचने वाले जो बोलते हैं विस्की बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, तमाम तरह की अन्य समस्याओं को जन्म देती है। हाँ, 1-2 बार पीने को मैं मना नहीं करता, हाँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत नुकसान करती है लॉन्ग रन में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न? If anyone have any questions, you can unmute yourself or ask directly, or you can put in the chat box.
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ, सर, देयर आर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स फ्रॉम सुनील यादव सर. Alternate Indian oil to olive oil for liver cleansing. मैं बता रहा हूँ अभी है। Yes sir. किडनी साइज कम हुई है तो क्या उपाय करना है? सबसे पहले लिवर क्लींस करना है। अच्छा, अल्टरनेट इंडियन ऑयल टू ऑलिव ऑयल। अल्टरनेट की जरूरत नहीं है, एक बार इंपोर्टेड वाला यूज कर लें, उसके बाद आपको ये भरोसा हो जाए कि इससे फायदा होता है, फिर कुछ भी करते रहें। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव इंडियन ऑयल ये इफेक्ट कई बार नहीं भी करता है। Sir, there are one more question from संतोष चौधरी सर. किडनी साइज कम हुई है, क्या उपाय करना है? उनको भी पहले लिवर क्लींस करना है, सबको पहले लिवर क्लींस करना है, ये मैंडेटरी है। Okay. Requesting everyone, if you have any questions, sir, there are questions from sister ma'am. Please suggestion for. सजेस्ट फॉर पीसीओसिस्ट। Yes. पीसीओसिस्ट के लिए भी उनको सबसे पहले लिवर क्लींस करना है, और उसके बाद वही जो मैंने बताया था दालचीनी का, वो इलाज करना है। हर हालत में सबसे पहले लिवर क्लींस करना है। Sir, very good afternoon. Nilesh Goyal here, sir. हाँ Sir, जी, बोलिए। there were queries from participants like कुछ cleanses हमने detail में नहीं बताए. For example, kidney cleanse. So I would suggest if you can give some names of the volunteers who can guide the participants who wants to do. इस पीपीटी के लास्ट में नाम दिए हुए हैं दो, वो कर सकते हैं। हम और भी नाम दे देंगे, वेबसाइट पे भी वॉलंटियर्स के नाम है, बिल्कुल बता सकते हैं। और किडनी क्लींस के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हम अभी जवाब भी दे सकते हैं उसका। Okay, sir. And the details of the websites and everything is available on the website. That ये also. चैट बॉक्स में वेबसाइट डाल दी गई है। हाँ, मैंने डाली थी वो। हाँ, और ये पीपीटी भी चैट बॉक्स में डाली जा सकती है। No sir, PPT we can't share sir. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. But all the data is available on the website. हाँ, And वेबसाइट पे तो सभी कुछ Okay. है। Okay हाँ। sir. Okay sir. सर, हाँ। एक क्वेश्चन है, पीकॉस सिस्ट का लिए क्या करना है? मैंने ये जो पीकॉस सिस्ट, पीसीएस का सिस्ट जो होता है ओवरी का, इसके लिए जैसा मैंने बताया था, दालचीनी को 3/4 गिलास में पानी, एक गिलास में 3/4 पानी रख के उसमें दालचीनी डाल के और इसको फ्रीजर में जमा देना है, और फिर उस पानी को बाहर निकाल के दालचीनी चूस के फेंक देना है। इस पानी में दवाई है, दिन में 2 बार 2 दिन तक, और ये खाली पेट लेना है। खाली पेट, जितनी हर्बल मेडिसिन होती हैं सब खाली पेट ली जाती हैं, जिससे कि असर ज्यादा करें, और एलोपैथिक मेडिसिन कुछ खाने के बाद ली जाती है, क्योंकि अगर वो खाली पेट ले ली गई तो बहुत जलन देती है। सारी एलोपैथिक मेडिसिन जो है एसिडिक होती है, ये बात ध्यान रखने की है, बॉडी के एसिड्स को बढ़ाती है ये। और खाली पेट का मतलब ये नहीं होता है कि रात भर पेट खाली रहे उसके बाद हमने उठे और हमने इसको खाली पेट माना। हम दिन में कई कई बार खाली पेट होते हैं। खाली पेट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारा खाया हुआ पोर्शन मोटा मोटा डाइजेस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नींबू पानी लिया है तो वो 10-15 मिनट में, चाय लिया हो तो 10-15 मिनट में, अगर डीप फ्राइड मटन खाया हुआ है तो उसके लिए 2 घंटा, इसके बाद फिर हम खाली पेट हो जाते हैं। खाली पेट जब रहेंगे तो स्टमक में एम्प्टीनेस रहेगी और स्टमक की वॉल से मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। बस इतना मकसद है। हाँ जी, और कुछ? सर, किसी को एच पायरोली बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है, उसके लिए क्या इलाज है सर? मेरे तरफ से हर समस्या की शुरुआत सबसे पहले लिवर क्लीन से करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने लिवर क्लीन शुरू किए बगैर कुछ भी और किया
तो हमारा क्लेम फिर इफेक्टिव नहीं रह जाता है। हमारा क्लेम लिवर क्लींस के साथ ही इफेक्ट होता है। रही बात एच पाइलोरी बैक्टीरिया की, एसिडिटी की वजह इसकी भी होती है ये। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के केस में हम पहले लिवर क्लींस कराते हैं, हालत थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है, उनको लगता है, फिर हम पैरासाइट क्लींस भी कराते हैं और किडनी क्लींस कराते हैं। बाय द वे, क्लींजिंग थेरेपी बैक्टीरिया, फंगाई इन सब से डायरेक्ट फाइट नहीं करती, ये बॉडी को स्ट्रांग बनाती है जिससे कि वो इनसे फाइट कर सके। अगर फाइट में जीत जा, पहली चीज तो क्लीनिंग शुरू करते ही एक लिवर क्लीन, एक दो किडनी क्लीन से ही लगने लगता है कि हम बेटर, लेकिन उधर पैथोजेंस अपनी गति से बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर होना होता है। पैरासाइट क्लीन भी वर्क करता है। उसके बाद भी अगर तकलीफ रह जाती है तो एक हफ्ते का एलोपैथी का कोर्स ले लीजिए, हम इसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम पैथोजेंस से अगर पूरी तरह फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, एक हफ्ते कोर्स लिए। लेकिन इतना बता दूं, एक लिवर क्लीन, एक किडनी क्लीन से काफी फर्क पड़ जाता है। Sir, there are questions from Sheetal madam. Knee pain, any solution on reasons for knee pain? रीजंस फॉर बीपी, Knee घुटनों के लिए सर, knee pain. नी पेन के लिए तो हमारा 45 डेज का ज्वाइंट क्लींस है, लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिएगा, वो 45 डेज का क्लींस है। 45 डेज के क्लींस का मतलब ये होता है, उसमें हम एप्पल साइडर विनेगर दिन में 3 बार 12 से 15 ml लेते हैं, जिससे कि एप्पल साइडर विनेगर का लेवल ब्लड में इतना हो जाए कि वो ज्वाइंट्स के बीच का टॉक्सिन्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके यूरिन तक पहुंचा सके। ये प्रोसेस होती है। 45 दिन काफी लंबा समय है, और ये ट्रीटमेंट हम 5 साल में एक बार करने के लिए रिकमेंड करते हैं। हाँ, एक चीज और, नॉर्मली हम लिवर क्लींस शुरू में 2-2 हफ्ते करने के लिए कहते हैं, और एक बार जब स्टोन्स निकलना बंद हो जाए तब मेंटेनेंस के लिए 1 से 6 मंथ, मैं खुद 6 महीने में एक बार करता हूँ, लेकिन उसके पहले 2-2 हफ्ते पे करता रहता हूँ जब तक स्टोन्स निकल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 45 दिन का ट्रीटमेंट आप 5 साल बाद रिपीट करने वाले हैं, इसलिए उसके पहले टारगेट ये बनाएं कि ज्वाइंट से ज्यादा जहर निकल जाए। उसके लिए पहले लिवर क्लीन, फिर किडनी क्लीन, फिर एसिडिटी क्लीन, फिर लिवर क्लीन। उसके बाद आप रूटीन में कभी भी ज्वाइंट क्लीन कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और मेरा दावा है, ज्वाइंट पेन्स की हालत में अगर प्रॉपरली किया जाए ये प्रोटोकॉल, 2 महीने के अंदर आपका दर्द हमेशा के लिए आधा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा मेजर है, मैं क्योर की बात कर रहा हूँ। आप दवा खा के रिलीफ मिलते हैं, और अगर आधा हो गया तो यकीन मानिए आप बर्दाश्त कर पाएंगे उसको, और शायद आपको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। There are questions from Rohini madam, sir. Solution for headache and backache. Hello. हाँ जी, Sir, is the age factor there for pelvic cleaning? I Any just age? Huh? solution for headache and backache. Solution for headache and backache. Of course, yes. Liver cleans, kidney cleans, this will go away. Another thing, अभी बता रहा हूँ. Knee pain, any solution and reason for knee pain. रीजन हमारी तरफ से तो एक ही रीजन है कि बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ गया है, एंड दैट्स ऑल। और हम खाली टॉक्सिन्स को निकालते हैं। लिवर क्लीनिंग नीड एट होम और contact to any clinic? No, it has to be done at home. If at home, then where will all get all details about liver cleanse process, required ingredients, etc. ये सब आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और काफी कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जितना बता दिया है उसकी बेसिस पे आप क्लींस कर सकते हैं, अब रुकने की जरूरत नहीं है। Sir, can we share Fatima sister's number here for their आप guidance? बिल्कुल कर सकते हैं। So I am sharing Fatima sister's number. So किसी को लिवर क्लेंस करना है तो आपको उसके ये एप्सम सॉल्ट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, कहाँ मिलेंगे, कैसे करना है, वो फातिमा सिस्टर विल हेल्प यू। आई एम शेयरिंग दैट नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। So I have shared on the link here.
हाँ जी, और कुछ? Sir, there are question from Rohini ma'am regarding the headache and back pain solution. व्हाट इज द क्वेश्चन? Solution for headache and back head. That I have already replied. Okay. One liver cleanse and one kidney cleanse will reduce the problem to a great extent in a very short time. Okay. हम्म। Okay, sir. हेलो। हाँ जी, हाँ सर, कल्पेश here. हाँ जी, बड़ी कर। Yeah, sir. Actually, after Corona, I am fast from some my mind problem and some problem in stomach. हाँ, Every time, every 3 months, every 2 months, I have passed from my stomach problem. Gas is my big problem, sir, in stomach. नहीं तो वही तो हम लोग बात कर रहे हैं। सोल्यूशन इज सिंपल, यू डू वन लिवर क्लीन एंड दैट्स ऑल। Yeah, हम्म, एक लिवर क्लीन कर Okay. लीजिए और yeah. आपका काम काफी हद तक हो Okay. जाएगा। Okay, okay, okay. Thank you, sir. Hello. Hello. हाँ जी, Sir, if you go to urine, we are seeing a bubbles on the urine, sir. देखिए Wait, उस सबसे हमें soap, फर्क soap क्या or पड़ता है? soap type of bubbles. मैं सब समझ गया, आप ठीक होना चाहते हैं ना? Yes, sir. आपके पास दो चॉइस हैं। हम्म। बिल्कुल सिंपल। आपको मैं यूरिन के 4-5 टेस्ट बता देता हूँ, आप वो सब अलग अलग लैब से करा के ले आइए, एक बहुत ही कलरफुल रिपोर्ट की फाइल बन जाएगी। दूसरा रास्ता ये है कि मैं आपको इलाज बता देता हूँ। अब चॉइस आपकी है कि आपको इलाज चाहिए या टेस्ट चाहिए। और ध्यान कीजिएगा, आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग जब कराने जाते हैं ना, तो वहां भी आपके पास चॉइस रहती है कि गाड़ी के सारे टेस्ट अलग अलग करा लीजिए, कार्बोरेटर का अलग, इंजन का अलग, पिस्टन का अलग, ब्रेक का अलग, फ्लूइड ऑयल का अलग। लेकिन अपना वो पर्पज नहीं, अपना पर्पज ये गाड़ी ठीक से चले। इसीलिए मैंने ज्यादा बात इलाज के बारे में की है। तो इलाज मेरा बिल्कुल सिंपल है, आप किडनी क्लीन, लिवर क्लीन कीजिए, ये इधर ही है ना, इतनी जल्दी ठीक हो जाने जाएगी, वाला तो नहीं है ना। आपको मजा आ जाएगा। हाँ, एक चीज और, आप अगर कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे कुछ कैंप भी लग रहे हैं। अरे घेवर खिला घेवर। जी हाँ, हेलो, हेलो। Yes, sir. You can continue, sir. Hello. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग घर पे कर ले जाते हैं घर पे कर लें, अदरवाइज कभी कभी कुछ कैंप्स भी लगते हैं। नीलेश, ये नंबर शेयर करना मैंने भेजा है अमरीश शर्मा का। तो फातिमा को आप सामान के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नीलेश, मिल गया नंबर? हाँ मिल गया सर। ये आई एम नंबर शेयरिंग। ये कैंप के लिए डाल सकते हैं, ये Yes. कैंप। लेकिन मेरी पहली रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अपने घर पे जल्दी से जल्दी कर लें लिवर क्लींस, किडनी क्लींस। पहले लिवर क्लींस, इससे आपको पता चले कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि घर बैठे भी कितनी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। Okay, sir. हम्म, Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. इस इंफॉर्मेशन का मजा तभी आएगा जब आप इसको करके देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हैपेंस। सर, चैट बॉक्स में देविका मैडम ने क्वेश्चन पूछा है, सर, हाउ टू मेंटेन आइडियल वेट इवन इफ वी डोंट ईट मच। इसमें एक सवाल सबसे पहले ये आता है, व्हाट इज द आइडियल वेट? ठीक है, और सबको ये सोच लेना कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, ये भी उचित नहीं है। हर एक के लिए आइडियल वेट अलग अलग हो सकता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी सब ठीक ठाक है, मैं मानता हूँ वेट थोड़ा कंट्रोल करके होना चाहिए, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक है तो वेट के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, अगर वेट ज्यादा है तो लिवर क्लींस, किडनी क्लींस काफी सपोर्ट करते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल के वेट को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करने।
तो हेलो, और किसी के और कोई सवाल होंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में डायरेक्टली चैट बॉक्स में आप सर से पूछ सकते हो। Sir, I think there is no more questions. So, sir, uh, sir, there is a question from Yogesh, sir. Any age limit for cleansing? Hello. हाँ जी, Yes, sir. There is question from Yogesh, sir. Any age limit for cleanser? हाँ, ये एक बाकी रह गया था। मेरे ज्यादातर क्लींस के लिए कोई एज लिमिट नहीं, लेकिन लिवर क्लींस के लिए लोअर लिमिट है 10 साल 12 साल, और वो भी कंडीशन ये है कि पेरेंट्स ने किया हुआ हो। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, 70 80 90 साल के लोग भी किए हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर 60 से ऊपर के किसी को कराना है ना, तो उनके घर में पहले कोई यंग पर्सन कर ले। अगर कोई नहीं है तब भी 65-70 वाले अपने आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई लिमिट। और अगर हम कंडीशन रखते हैं कि ज्यादा सालों से डायबिटीज रही है, ब्लड प्रेशर रहा है, जॉन्डिस रहा है, उस केस में हम सुपरविजन में करा देते हैं, कोई ना कोई वॉलंटियर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम डोसेज कम कर देते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि उनके घर में किसी और ने इसको पहले किया हुआ। इससे लाइफ काफी बेटर हो जाती है और क्लीन आसान हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ अस जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, अपने आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने बताया भी था। आप सोचेंगे कि एक प्रॉब्लम ठीक होगी, एक से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एडवर्स साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। नंबर 1, थायराइड क्लींस के बारे में पूछा गया। थायराइड क्लींस वगैरह बहुत कॉमन नहीं है, जिनको थायराइड होती है वही करते हैं। थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बन रहा है तो कम बनने लगता है। 1 मंथ 30 डेज का प्रोटोकॉल होता है, अश्वगंधा वाला मैंने बताया था। बाकी वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ है, लेकिन थायराइड के लिए भी पहले लिवर क्लींस करना है। तो मेरा बार बार निवेदन यही है कि अपनी विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लिवर क्लींस से शुरुआत करें, क्योंकि उससे काफी कुछ ठीक होता है और तुरंत का तुरंत पता चलता है, और थोड़ा हमको भी पता चलता है कि आप कितनी तेज एक्शन ले सकते हैं। So I think, sir, there are no more questions. So, sir, we move ahead, sir. Okay, thank you everybody. Thank you, you sir, so for much. the wonderful presentation and very valuable information, sir. I hope you liked it and you'll do a liver cleanse. Yes, sir. Thank you so much. Our next session is on 9th September. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above books, please contact Ms. Sushma Tindalkar on the given number and mail ID. Feedback form, please register on www.satgunsang.org and go in your login and give your feedback to us. So thank you, Piyush sir, and thank you all the delegates and participants who were joined for the today's Sadgun Sang.
And now it's time to officially close the session. Thank you, everyone.